Is it fine now? Okay. So in the last class, we were simply discussing about objects, classes. Okay. But I ask you that can you please figure out where we generally use objects and classes in real time? Oh, sorry, in the real life, like for designing any application or designing any algorithm or what? Did you ever explore about it? Like, did you find something where we can generally use objects and classes? Anyone? Where it is more important, like every function, whatever we have seen, like even though dictionaries, sets, and normally a function, there are specific use cases if we are using this thing in. Okay, everyone is joining late. Yeah, so if we are using them on some specific cases, they are more meaningful. Did you find anything for object and classes? Anyone? Hello, bhai. um okay. Hold on. Look, so whatever we were doing in the last session, the object and classes, it's not like it is a topic, it is a whole domain again, that is known as OOPS, Object Oriented Programming System. Okay, so whenever we are working with OOPS, there are some specific words, there are some specific functions, there are some specific methods that we generally use, and in the last class we have covered a bit of it. Okay, so today we are going to explore it more, how we can define OOPS and why we use OOPS and core concept of it. Okay, so basically, if we are talking about object oriented programming system, that is OOPS, that is a normal thing. Like it's not like a different coding or like different functions. It's completely based on the objects. Okay, and whatever you were doing for attributes, whatever you were doing with methods, whatever you were doing with classes, that all are covered inside this OOPS. Okay, now like why we need to define a different chapter like OOPS, why we cannot normally go with the functions. Again, I was telling you that whatever you can do with the objects and classes, you can easily do with the functions. Why we need to do this OOPS? So the first and the important reason for designing the OOPS is organizing the code. Always, like in general things, if you're talking about a code of 20 lines, 30 lines, 40 lines, it's not really important that your code is organized. If you're getting output of it, that's enough. But whenever we are making a scalable, like when I'm talking about scalability, we are talking about a project where we are improving day by day. At the moment we need a organized code, and that is only possible with the help of OOPS. And there are some more reasons like flexibility, reusability that OOPS provide you. Okay, with the help of some specific methods that we will cover today, we'll try to cover some methods like inheritance, modularity, that we are going to cover today. Let's see what does it mean basically. Okay, now let me share my screen. Just a second. Okay, I hope you can see my screen now. Let's
quickly go through the definition of inheritance, like what is the meaning of inheritance and why do we use it. For example, think in this way. Normally, if you're talking about your parents, okay, so sometimes we say that, okay, if you're talking about a child, his eyes are from his mother, and like face cuts are from the father, and like these type of things are happening in the real world. Okay, we define this in inheritance as well. There are two things. One is parent class, and then second is child class. हमने मतलब अलग से कुछ नाम देने की मेहनत करने की बजाय we directly defined it with parent class and child class. ओके, पेरेंट क्लास को आप ऐसे समझिए, ये बेस होता है, यानी कि वट एवर थिंग्स यू विल बी टेकिंग, दैट यू विल बी टेकिंग फ्रॉम द पेरेंट क्लास, so we can also call it base class. And the child class, that is derived from the parents. Okay, so that will be known as the derived class. ठीक है, तो इनहेरिटेंस में हमें दो चीज देखने को मिलेंगी, एक होगा पेरेंट क्लास और एक होगा चाइल्ड क्लास. इनहेरिटेंस लाइक अगेन, अगर आपको किसी को डिफाइन करना हो तो आप ऐसे सिंपली बोल सकते हैं कि इनहेरिटेंस इज नथिंग बट इट्स अ फीचर ऑफ ऊप्स. ठीक है, एंड दैट अलाउज वन क्लास, कौन सी क्लास, वन क्लास दैट इज चाइल्ड क्लास, टू इनहेरिट द एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स जो हम कल कर रहे थे. बाय द वे वी वर डूइंग द ऊप्स थिंग्स, इनहेरिटेंस ही हम कर रहे थे. So, what is inheritance? It's a feature of OOPS that allows one class to inherit the attributes and methods of another class. तो हम कहाँ से inheritive मतलब receive करना simply. So whenever we are inheriting the attributes and methods from another class, that will be the parent class. Then we okay, and the reason behind it always allows you to read. सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही. And आप एक ना use the mobile hotspot, so what happened? Just a second. Is it clear now a bit? Hello, can you hear me properly now? Okay. Yeah. So let me keep my screen not share. So what I was saying, that whatever we were doing in the last class, that was known as OOPS. So two things that we need to focus in OOPS, that is a parent class and the child class. Parent class also known as base class, child class also known as derived class. ठीक है, तो इनहेरिटेंस में अगर आपको डिफाइन करना, अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग, might be possible that my voice was breaking at the time. The inheritance is nothing but it's a feature of OOPS that allows you, or that allows one class, that is your child class, to inherit, that means to receive the attributes and methods of another class. Simply जब child class parent class से attributes और methods receive करता है, that means it is inheriting the attributes and methods from parent class. इसे ही हम बोलते हैं inheritance. ठीक है, and the reason of having inheritance in our code is that it allows us to reuse the code again. Like whenever you want to reuse, you can simply change the values, and changing the values means changing the attributes, and you can get another code. ठीक है, एंड आप ना इससे एक हायरार्की और क्रिएट कर सकते हो. फॉर एग्जांपल, अगर आपको बहुत सारी क्लासेस हैं हमारे पास, इन केस अभी हम कल एक क्लास ही बना रहे थे, इन केस whenever you are designing 10 classes, 20 classes, then you have to set a hierarchy. Then you can also do it with the help of inheritance. कैसे करते हैं, क्या करते हैं, let's see one by one. And inheritance is like, we can define it in four types. The types of inheritance,
That is single inheritance, multiple inheritance, multi-level inheritance and hierarchical inheritance. ठीक है. सबका एक एक एग्जांपल देखेंगे, बट लेट मी just give you one line definition of all of these things, like four things. Single inheritance, whenever a child class inherits from one parent class, यानी जो हमारी parent class है वो एक ही पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास अगर वैल्यूज ले रहा है एट्रीब्यूट्स की और मेथड्स की, देन इट इज सिंगल इनहेरिटेंस. कल जब हम जो कुछ भी किया हमने वो सारा किस में काउंट होता है? सिंगल इनहेरिटेंस में. ठीक है. मल्टीपल इनहेरिटेंस, जब चाइल्ड क्लास इनहेरिट्स फ्रॉम मल्टीपल पेरेंट क्लासेस, नॉर्मल. ठीक है. अब मल्टी लेवल में क्या होता है कि whenever a child class inherits from a parent class which itself is a child of another class, यानी जो पेरेंट क्लास है ऐसा समझो, दादाजी, दादाजी के बाद फादर, फादर के बाद एक और उसके चाइल्ड. ठीक है. तो ये क्या हो गया? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, दैट अ चाइल्ड क्लास inherits from a parents class which itself is a child. तो ये हो गया हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. अब हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है? मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट क्लास. बहुत समझते हैं. मैं आप बस ये पेरेंट और चाइल्ड वाला कंसेप्ट लेके समझेंगे, आसानी से समझ सकते हैं. तो हायरार्की में क्या होगा कि मल्टीपल चाइल्ड क्लासेस आर टेकिंग द वैल्यूज ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट क्लास. ठीक है. तो ये चार टाइप होते हैं इनहेरिटेंस में: सिंगल, मल्टीपल, मल्टीलेवल एंड हायरार्किकल. लेट मी give you some examples of each of them. Can you see my screen? Okay. Okay. तो देखो, एक नाम की वॉइस ब्रेकिंग. सर आपकी वॉइस फिर से ब्रेक हो रही है. Give me 1 second, please. Just a minute. I hope you can hear me now. Can you hear me now properly? Yes, sir. Okay. Thank you. So yes, before moving forward, ये init ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? कल हमने देखा था ना कुछ तो भी इसके बारे में. What is this init? Defining init. Constructor. Constructor. Good. और कुछ इसका specifications क्या होते हैं? Why do we use it? Well, it automatically runs when we define the class object.
ठीक है. Look, so whenever we are talking about inheritance and whenever we are talking about the first type of it, there is, we are creating single class, that is our animal. ठीक है. Now let me run it one by one. Okay. So first class is animal and second is dog. That is again another class of animal, and that is taking the values here. We have one object dog. Let me run it. Okay, we are taking the values from a single class, and what is the class? Like eat and dog dot break, this object, from where it is taking the values. Can someone tell me, is it taking from animal or is it taking from dog animal? कमेंट्स में लिखा है तब तो बोल दो. And the second line, it is printing buddy says woo. So what is the parent class for this object dog? Animal. Animal or dog animal? बोलो. Dog inherits animal. तो पेरेंट क्लास हमारी क्या हुई? एनिमल. Animal. यस. इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डॉग डॉट वर्क, तो इसमें पेरेंट क्लास कौन सी हुई? यार सामने लिखा है डॉग एनिमल ऑब्वियसली, और कहाँ से प्रिंट करेगा इसे? इस प्रूफ यहीं पे तो है. सो लुक, these are the two objects here and they are taking the values from different class. ठीक है. Object, or sorry, not an object, like any child class taking the values from a first parent class, any single parent inheritance. ठीक है. तो ये एक बेसिक सा एग्जांपल है कि हमारे पास यहाँ पे दो क्लासेस थी, एक एनिमल और एक डॉग एनिमल. हमने यहाँ पे एक डॉग नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एंड वेन एवर वी आर राइटिंग डॉग डॉट ईट, और जब यहाँ पे डॉग डॉट ईट हम बात कर रहे हैं ईट की, तो यहाँ पे इसने वैल्यू कहाँ से ली? जो हमारा ईट नाम का फंक्शन था, यहाँ से वैल्यू पुट करके बडी डॉट ईटिंग प्रिंट हो गया, बडी इज ईटिंग प्रिंट हो गया. तो फर्स्ट क्लास हमारी जो है यहाँ पे, ये भी सिंगली कंसीडर की जाएगी, ये भी सिंगली कंसीडर की जाएगी, भले ही एक सिंगल ऑब्जेक्ट के थ्रू हम दो पेरेंट क्लासेस से वैल्यूज निकाल रहे हैं. दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस. ठीक है. अगर दो क्लासेस लिखी हो तो मल्टीपल इनहेरिटेंस मत समझ लेना. दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस. ठीक है. नाउ let me put you the code of multi-level inheritance. ठीक है. अब हमारे पास क्लास कितनी है? एक इंजन, दूसरा व्हील्स, तीसरा कार, जिसमें वैल्यू कहाँ से जा रही है? इंजन और व्हील्स, जो कि कहाँ पे हैं? दो अलग अलग क्लासेस में. ठीक है. तो ये हमारी कौन सी एग्जांपल हुआ? ये हमारा हुआ मल्टीपल इनहेरिटेंस, क्योंकि जब भी चाइल्ड क्लास वैल्यू टेक करेगी कहाँ से? मल्टीपल पेरेंट क्लासेस से,
ऑब्वियसली एक से ज़्यादा अगर वैल्यू आप देखोगे, एक मेथड और आइदर इट इज योर एट्रीब्यूट्स, दैट विल बी आर मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, यहाँ पे अगर हम जब इसको रन करने जाएंगे तो हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कार। अब अगेन ऐसा नहीं है कि आप इंजन और व्हील का ऑब्जेक्ट बना दोगे तो फिर वहां से देखोगे कि अब ये भी मल्टीपल हो गई, मल्टीपल लेवल ऑफ इनहेरिटेंस। हम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑब्जेक्ट हमेशा चाइल्ड क्लास का होगा। ठीक है, चाइल्ड क्लास हमारी यहाँ पे कौन सी है? सिंपल एग्जांपल, ठीक है, फर्स्ट केस स्टार्ट इंजन, तो यहाँ पे वैल्यू कहाँ से इनहेरिट की है हमने? इंजन से। ठीक है, भले ही अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो पहले फर्स्ट क्लास से चाइल्ड क्लास में जाएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको एक्सेस करेंगे, बट द होल थिंग विल बी नोन एज मल्टीपल इनहेरिटेंस। अगर मैं यहाँ पे इसको हटा दूंगा, ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। ठीक है, एक और क्लास ऐड कर देंगे, दो क्लासेस से वैल्यूज लेंगे तो वो हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। सिमिलरली अब आता है हमारे पास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल में क्या होगा हमारे पास कि चाइल्ड क्लास वैल्यू पेरेंट क्लास से लेगी, लेकिन जो पेरेंट क्लास होगी वो ऑलरेडी किसी दूसरी क्लास की चाइल्ड क्लास होगी। यानी कि ये ये हो गए दादाजी, ये उनका बेटा, उनका बेटा, और ये हो गया हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सिंपल, व्हीकल नाम की हमारे पास एक क्लास थी, पहले व्हीकल नाम की क्लास से जो हमारी एट्रीब्यूट्स और मेथड्स उठाए हमने वो इस वाली क्लास में उठाए, उसके बाद इस वाली क्लास से हमने इस वाली क्लास में वैल्यूज उठाई। तो चाइल्ड क्लास अब कौन सी हुई? ये दोनों ही चाइल्ड क्लास हैं, बट कार व्हीकल वाली जो हमारी क्लास थी उसके लिए चाइल्ड क्लास ये है, और व्हीकल के लिए चाइल्ड क्लास ये है। ये वाली क्लास जो है वो व्हीकल की चाइल्ड क्लास नहीं है, वो कार की चाइल्ड क्लास है। ठीक है, अगर कभी है मतलब कंफ्यूजन क्रिएट हो तो ऐसे समझिए, जो मैंने अभी आपको बोल रहा था कि ये वाली वैल्यूज यहाँ से यहाँ पे आएंगी, फिर यहाँ से यहाँ पे, और ऑब्जेक्ट हम किसका बनाने जाएंगे? हम मान लो हमने एक इलेक्ट्रिक कार का ऑब्जेक्ट बनाया, जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहाँ पे पहली वैल्यूज आएगी व्हीकल से, चाहे कहीं से भी आए, कार से, फिर इलेक्ट्रिक कार से, बट दिस होल थिंग इज एसोसिएटेड विद द चाइल्ड क्लास विच इज इलेक्ट्रिक कार। ठीक है, बेसिक जो डिफरेंस है मल्टी लेवल और मल्टीपल में वो बस यही है कि मल्टीपल में क्या होता है कि मैं क्या करता, ये कार एक और बना लेता क्लास, यहाँ पे कार क्लास बना लेता, और इलेक्ट्रिक कार में वैल्यू टेक करता मैं कार से और व्हीकल से, तब हमारा ये क्या हो जाता? मल्टीपल। मल्टी लेवल में क्या होगा कि जो पेरेंट क्लास होगी वो खुद एक चाइल्ड क्लास होगी दूसरी क्लास की। ठीक है ना, एक और बचता है हमारा यहाँ पे हायरार्की। ठीक है, वापस से वही पर अब हमारे पास क्लास एक ही है, पेरेंट क्लास एक ही है, चाइल्ड क्लास कौन सी है? दो, एक डॉग और एक कैट। ठीक है, अब डॉग के लिए ऑब्जेक्ट कौन सा है? ये। कैट के लिए ये। दोनों के दोनों वैल्यू टेक करेंगे डॉग और कैट से, और डॉग और कैट वैल्यू टेक करेंगे एनिमल से। ठीक है, सो व्हेनेवर
different child classes inherit from a single parent class, that is our hierarchical inheritance. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक बेसिक oops का मेथड जिसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन के डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में? सिंपल है, ज़्यादा कुछ उसमें सोचना विचारना नहीं है कि जब एक क्लास हो, एक पेरेंट क्लास हो, तो सिंगल इनहेरिटेंस. whenever we are having a different parent classes and we have a single child class which is taking values from multiple parent classes, तब हो गया multiple. and whenever एक चाइल्ड क्लास वैल्यू टेक करती है एक पेरेंट क्लास से, बट दैट पेरेंट क्लास इज ऑल्सो अ चाइल्ड क्लास फॉर अ डिफरेंट क्लास, तब हो गया मल्टी लेवल. हायरार्किकल में होता है whenever we are having different child classes but the parent class is single, तब हो गया हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस. ठीक है ना? एक और इसमें कंसेप्ट आता है, ये तो ऑलमोस्ट सब जगह आपको दिख ही जाएगा कंटेंट में, बट ओवरराइडिंग हम कैसे करते हैं? लुक, अब देखो, पेरेंट क्लास कौन सी है? एनिमल. चाइल्ड क्लास कौन सी है? डॉग एनिमल. लेकिन यहाँ पे जब हम इसको रन कर रहे हैं, पहले आप मुझे डिफरेंस बताओगे कि एक नॉर्मल सिंगल इनहेरिटेंस और ये अभी जो रन कर रहा हूँ इसमें कोई डिफरेंस है या नहीं है? Let me run it. जी, चेक करो कोड में. अब मुझे डिफरेंस बताओ, सिंगल इनहेरिटेंस जो हमने पढ़ा था और इसमें कोई इनहेरिटेंस में डिफरेंस है क्या? बोलो बोलो. ऑलरेडी कमेंट्स आपको देखा होता है, एक बार थोड़ा सा देख लो और कुछ लग रहा है डिफरेंस. चाइल्ड क्लास डिफाइंस इट्स ओन वर्जन ऑफ स्पीक. अच्छा, और कोई? अच्छा, बाकी सब बात में ये Same सिंगल method in both parent sorry? class as well as child. Sir, same method in both child class as well as in parent class. सेम मेथड दोनों Speak. में? हाँ, स्पीक मेथड. ठीक है, और कोई? अच्छा, ये सिंगल इनहेरिटेंस है कि कोई मतलब दूसरा टाइप ऑफ इनहेरिटेंस हो गया? इज इट स्टिल सिंगल इनहेरिटेंस? गुड. लुक, इसको जो भी आप कोई बोलेगी, मतलब इज इट अ डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस? नो, कंसेप्ट तो सेम ही है ना कि जो भी हमारी वैल्यूज आ रही है वो इन एनिमल से ही आ रही है, सिंगल पेरेंट क्लास से ही चाइल्ड क्लास वैल्यू ले रहा है. बस ये कर क्या रहा है कि इसने ना जो हमारे पास स्पीक मेथड था, हमारे पास स्पीक फंक्शन था, उसमें ना अपने आप से इसने एक और चीज डिफाइन कर दी, वो हो गया द डॉग बार्क्स. तो इसको हम क्या बोलते हैं? whenever a child class override the information from the parent class, कि पेरेंट क्लास में जो कुछ भी बताया गया था, अच्छा बच्चा नहीं था, इसने आके अपनी कुछ खुद की कहानी बता ली, देन इट इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग. ठीक है, यानी कि जो भी हमारे पास फंक्शन होगा उसको हम चेंज करेंगे, बदलेंगे, या फिर उसकी वैल्यूज में कुछ भी करेंगे, दैट इज मेथड ओवरराइडिंग. और ये हर एक क्लास में, ऐसा नहीं है कि सिंगल में लगा सकते हो, मल्टी लेवल हर जगह कर सकते हो. ठीक है, दैट इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग. ठीक, now one more example. ठीक है, इसमें एक मतलब जब भी हम इनहेरिटेंस पढ़ रहे होते हैं तब ये जो सुपर फंक्शन होता है ये थोड़ा सा यूजफुल हो जाता है. whenever you have to call methods from the parent class, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना होता है? सुपर फंक्शन.
ठीक है, कि इसका यूज करके आप क्या कर सकते हो कि सिंपली इट विल अलाउ यू टू कॉल मेथड्स फ्रॉम द पेरेंट क्लास। कि ये हमारी पर्सन है, इट इज अ पेरेंट क्लास। जब हमारे पास चाइल्ड क्लास थी स्टूडेंट नाम की, तब जो हमने वैल्यूज यहाँ पे हम कर रहे हैं वो वैल्यूज कहाँ से ले रहे हैं, पेरेंट क्लास से। यानी कि आप जो मेथड्स होंगे हमारे पास सारे के सारे पेरेंट क्लास के, उनको आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो पेरेंट क्लास से यूजिंग सुपर फंक्शन। लेट मी रन इट। ठीक है, तो कोई इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं हुई कि सुपर का यूज़ करके हमने जो हम ऊपर कंस्ट्रक्टर बनाते थे पेरेंट क्लास वाला, उसके बजाय हमने एक और खुद का एक चाइल्ड क्लास के अंदर एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया, और उसके थ्रू हमने मेथड जो थे पेरेंट क्लास के उसको चाइल्ड क्लास में कॉल कर लिया, और कुछ नहीं। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, ऑब्जेक्ट में एलिस और 8 वैल्यू पुट करूंगा, तो वो पहले कहाँ पे जाएगी, जो नॉर्मल हमारा फंक्शन होता है, अगर हम नॉर्मली करते बिना सुपर के, तो वो हम क्या करते, पर्सन में ही हमें डिफाइन करना पड़ता, पेरेंट क्लास में ही हमें डिफाइन करना पड़ता कंस्ट्रक्टर, वो हम चाइल्ड क्लास में नहीं कर पाते। बट सुपर के थ्रू हम चाइल्ड क्लास में भी कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं, और जो जिसकी वैल्यूज कहाँ से आएंगी, पर्सन से। जो पर्सन का ऊपर वाला फर्स्ट मेथड था नेम, ये वाला, इसको हमने यहाँ पे उठाया, और इसमें एक और हमने एडिशनली कुछ भी ऐड करना होगा तब हम सुपर को यूज करेंगे, और सुपर को यूज करके हम पेरेंट क्लास के मेथड को चाइल्ड क्लास के मेथड में एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली एक नया कंस्ट्रक्टर तो बनाना ही पड़ेगा, बिना उसके तो हम मेथड बना ही नहीं पाएंगे। ठीक, तो ये एक यूज केस हो गया सुपर फंक्शन का, कि जब भी आपको कॉल करने हो मेथड्स पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में, तब आप सुपर फंक्शन का यूज करेंगे। अब कुछ और थोड़े, अभी जो भी आप ये टॉपिक्स देख रहे हो, लाइक आई एम नॉट श्योर, बट ये एडवांस पाइथन में आते हैं। हम हमेशा इनको जब भी यूज करेंगे तो क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में आप पढ़ेंगे, तब आप इनहेरिटेंस के टाइप्स मेजरली आप कवर कर लेते हैं। बट सुपर फंक्शन हो गया या फिर ओवरराइडिंग हो गया, दैट इज कंप्लीटली इन द एडवांस पाइथन। जब भी हम कोर कंसेप्ट ऊप्स के पढ़ते हैं तब हमें देखने को मिलता है। एक और देख लेते हैं, आई एम नॉट श्योर, अगर दोस्त हु आर बिगिनर्स, आप घर पे एक बार ट्राई करिएगा खुद से कि आप कैसे सारे के सारे यूज करके कोई नॉर्मल सा एक, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, नॉर्मल से क्वेश्चंस आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं इन सबको। ठीक है, एक और एग्जांपल है इसी का, इनहेरिटेंस में ही होता है। जस्ट वन सेकंड। ठीक है, अभी जो हमारे पास एग्जांपल है, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ polymorphism in inheritance. Whenever a method, कोई मेथड है, इट कैन ऑल्सो बी, या मेथड, क्योंकि oops में हम मेथड वर्ड ही यूज करते हैं, बट आप फंक्शन भी समझ सकते हो, इसमें इतना कुछ नहीं है। बट व्हेनेवर अ मेथड, जब भी हमारे पास चाइल्ड क्लास का कोई मेथड होगा, दैट कैन बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम द सेम मेथड इन द पेरेंट क्लास। ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि अगर आप इनहेरिटेंस यूज कर रहे हो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट में, और अगर आपको चाहिए कि आप दूसरी जब क्लास बना रहे हो जिसकी वैल्यूज पेरेंट क्लास से आ रही हैं, और आपने एक मेथड ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है पेरेंट क्लास में, अगर आपको चाहिए कि आप जो चाइल्ड क्लास बना रहे हो उसका मेथड कुछ डिफरेंट वैल्यूज के साथ करे, या फिर कुछ डिफरेंट उसकी प्रॉपर्टीज हो, या कुछ भी दैट इज पॉसिबल। ठीक है, लुक एग्जांपल कौन से इनहेरिटेंस का है, मल्टीपल और मल्टी लेवल।
मल्टीपल, ठीक है। एक ही दो लोग बोलते रहते हैं, लाइक सीरियसली ऐसा तो नहीं है कि बाकी सबको समझ नहीं आ रहा है या कुछ बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं, हम तो अभी फंक्शंस ही सही से नहीं समझ पाए हैं? इज इट सो? देखो, अगर इसमें ऐसा है आपके साथ कि अगर फंक्शन से अभी आप ढंग से क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इसमें प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस, क्योंकि मुझे तो हर दिन एक नया टॉपिक कवर करना ही है, क्योंकि नहीं करूँगा तो फिर 6 महीने थोड़ी ना कि हम पाइथन में 6 महीने तक टाइम लेते रहें और हो जाए। ऑब्वियसली आई हैव टू कम अप विद अ न्यू टॉपिक। जो पिछले टॉपिक हैं, आई एम श्योर एज ए स्टूडेंट, अगर मैं भी अगर किसी ऐसे पढ़ रहा होता तो डेली एक नया टॉपिक ऐड होता जाता, पीछे वाला मैंने रिवाइज नहीं किया है तो आगे वाले तो ऐसा लगता है कि फिजूल की बातें चल रही है, पीछे कुछ समझ नहीं आया। तो दैट इज ट्रू, आई कैन अंडरस्टैंड, बट द ओनली सोल्यूशन फॉर इट कि अगर आज कोई टॉपिक हो रहा है, अगर आपने एटलीस्ट ज़्यादा नहीं कुछ 5-6 एग्जाम्पल्स भी आपने जो कुछ भी क्लास में कोड थे उनको भी एक बार रन करके खुद से समझ लिया, दैट इज इनफ। आपको टॉपिक समझ आ जाने, मैं कोई इतने हाई फाई लैंग्वेज में नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो प्लीज़ जो भी आप कर रहे हो तो डेली उसको एटलीस्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लो। बाकी और कुछ इतना ज़्यादा पाइथन में तो है नहीं। बाकी अगर आप कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेके बैठे होते C++ वगैरह में, तो आधा टाइम तो उसमें समझने में लग जाता था सिंटेक्स। पाइथन में एटलीस्ट सिंटेक्स तो आसान सा होता है। हाँ, थोड़ा बहुत हो जाता है कि जब कंस्ट्रक्टर बनाने जा रहे हो तो उसका तुम्हें इनिट के अगल बगल लगाना वाला भूल गए, कितना सिंगल लगाना था डबल लगाना था वो भूल गए। दैट विल ओनली पॉसिबल कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस अगर होगी देन ओनली यू कैन, क्या बोलूँ, देन ओनली यू कैन डाइजेस्ट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। वरना अभी तो पाइथन ही है, ML में और दिक्कतें आएंगी, AI में और दिक्कतें आएंगी, ठीक है? क्योंकि जब तक चीज़ें चल रही होती है वही इफ एल्स तक, लूप्स तक और फंक्शंस तक, तब तक तो ठीक रहता है, क्योंकि वो तो आसान सी चीज़ है। बट फंक्शंस और इफ एल्स में भी अगर 2-4 कंसेप्ट और एडवांस में ऐड हो जाते हैं तो वो भी दिक्कत देने लगते हैं। तो सिंपल सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस करो तभी कुछ हो सकता है। मैं 2-4 क्वेश्चंस इसके अपलोड करूँगा आज, सॉल्व करने की कोशिश करना, तो आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि समझना खतरनाक है, क्योंकि सिंगल इनहेरिटेंस पता ही है, एक पेरेंट एक क्लास, फिर मल्टी लेवल मल्टीपल, आसान से समझ सकते हैं। बट यूज कहाँ करना है वो तो खुद से ही आएगा। एल्गोरिथम क्रिएट्स करना वो आपको खुद से ही सीखना पड़ेगा, और वो तभी आएगा जब आपके पास कोई प्रॉब्लम होगी, वो प्रॉब्लम आपके दिमाग में आएगी, तब आपके पास 50 सॉल्यूशन आप कंबाइन कर सको कि हाँ इसमें मैं फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ, इसमें मैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें मुझे ओवरराइड करूँगा तो आसानी से हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर मैं कोई दूसरा फंक्शन या फिर पॉलीमॉर्फिज्म यूज़ कर रहा हूँ उसके थ्रू हो जाएगा। तो दैट यू हैव टू डू। टॉपिक समझना इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? आई डोंट थिंक सो कि एक छोटे से आप सिंगल इनहेरिटेंस को समझने में टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। बट यूज़ कब कहाँ कैसे करना वो खुद से आएगा, प्रैक्टिस से ही आएगा, ठीक है? सो लेट मी कम बैक टू द टॉपिक कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। कि सिंपली व्हेनेवर, यस अफराज, हाँ सर, ये मल्टीपल है कि हेरारिकल? सॉरी, तो जो एग्जांपल आपने दिखाया ना स्क्रीन पे, हाँ आप बताओ। ये हाँ, ये मैं पूछ रहा था। गुड। तो ये मल्टीपल है या मल्टी लेवल है या हायरार्की है? सर आई थिंक इट इज हेरारिकल। क्यों? सर क्योंकि सिंगल पेरेंट क्लास है, मल्टीपल चाइल्ड क्लास कर रही है। सिंपल, जब हमारे पास कभी भी अगर आपके पास 4 क्लासेस हैं, चाइल्ड क्लासेस है, 5 क्लासेस हैं, और पेरेंट क्लास में हमारे पास एक ही क्लास है, 2 वैल्यूज अगर टेक करते हैं वहाँ से, दैट इज आर हायरार्किकल, ठीक है? और कभी भी समझना है तो वो मैं बताया ना, दादाजी और फिर दादाजी के बेटा, फादर, ऐसे करके समझ लेना आ जाएगा। लुक, तो यहाँ पे अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास पेरेंट क्लास कौन सी है? शेप। इसकी 2 चाइल्ड क्लास कौन सी है? रेक्टेंगल और सर्कल। लेकिन इसका जो ओके, ये पास बताया मैंने कभी आपको? इसको पता है पास क्या होता है? बोलो। नहीं पता, अफराज को नहीं पता, बाकी और कोई? सिमरत भी नहीं पता, तो बोल दिया करो। कोड में कुछ ऐसा कुछ दिखा करे, मैं तो ऊपर ऊपर करके निकल जाऊंगा। किसी को पता है?
आयशा पे डाउन। और कोई? लुक, चलो पहले हम इस पास को डिस्कस कर लेते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं इसका। थोड़ी देर के लिए पॉलीमॉर्फिज्म को पॉज कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मैंने एक शेप सिर्फ इतना लिखा, ठीक है। एरिया सेल्फ करके एक मैंने फंक्शन क्रिएट किया क्लास के अंदर। फिर उसके बाद मैंने लिख दिया पास। पास का मतलब कुछ नहीं, सीरियसली पास का मतलब होता है कुछ नहीं। पास का अगर कोई पूछे पास करता क्या है, इट डज नथिंग, ठीक है। पास का सिंपल यूज हमें करना होता है जब ये एक प्लेस होल्डर की तरह यूज करते हैं हम इसको। और जब हम कभी भी क्लास को कोई एग्जीक्यूट करने चाहोगे, ये कुछ नहीं करेगा, हमारे जो कोड को रन करने में हमें एक हेल्प मिल जाती है इसके थ्रू कि हमारे पास फंक्शन के अंदर कोई हमने वैल्यू पुट कर दी। बट अभी हमें इसके साथ कुछ नहीं करना है। जब भी आपको कोई मेथड क्रिएट करना है, उसके बाद आपको मेथड क्रिएट करके छोड़ना है, आपको उसमें कोई वैल्यू पुट करनी है ना कुछ करनी है। तो एक सिंपल प्लेस होल्डर की तरह आपने इसको रख दिया है। तो स्किप तो कर नहीं सकते, स्किप की बजाय हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, पास। तो अगर मैं एक सिंपल सा यहाँ पे शेप नाम की क्लास क्रिएट करूंगा, उसके अंदर एक मैं मेथड क्रिएट करूंगा एरिया, उसके बाद मैं लिख दूंगा पास। इसका मतलब ये हमारा हो गया एक प्लेस होल्डर। जो यूज कहाँ करते हैं इसका, क्यों हमें इसकी नीड पड़ती है, जब भी हम सब क्लासेस बनाने जाते हैं, जैसे कि अभी हम बना रहे थे इसके पास के बाद अगर हम कोई चाइल्ड क्लास में हम कुछ करने जाएंगे, वहां पे हम इस मेथड का यूज कर लेंगे। अगर आप कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो, पॉलीमॉर्फिज्म के एग्जांपल में ऐसा कुछ नहीं, पास के थ्रू ही कर सकते हो, कर सकते हैं। बट अगर हमें चाहिए कि हमने एक नॉर्मल बस दिखाने के लिए पेरेंट क्लास बनानी है, बाकी जो मेथड है उसका उसका यूज हम करने वाले हैं सब क्लासेस में, यानी कि चाइल्ड क्लासेस में, तब हम किसका यूज करेंगे, पास का, क्योंकि हमें अंदर उसके कुछ वैल्यू पुट नहीं करनी है, ठीक है। तो पास इज नथिंग, पास इज सीरियसली नथिंग, इट डज नथिंग, इट्स नॉर्मली अ प्लेस होल्डर, ठीक है। अगेन लेट मी पुट द एग्जांपल। कहाँ गया भाई? ओके, ठीक है। तो जो पहली हमने अपनी पेरेंट क्लास बनाई शेप नाम की, उसका मेथड है हमारा एरिया। अब हमने इसके दो चाइल्ड क्लास बनाई, रेक्टेंगल और सर्कल, ठीक है। जो हमारे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है उसमें वैल्यूज हमने कौन सी दी है, विथ और हाइट। यहाँ पे हमने एरिया भी डिफाइन किया एक फंक्शन में, जिसमें हम रिटर्न में क्या ले रहे हैं, ऑब्वियसली रेक्टेंगल है तो हम विथ इनटू हाइट करके एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमने एक और जो क्लास बनाई चाइल्ड क्लास, उसमें जो वैल्यू वो रेडियस है, और कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम इसमें रेडियस के एक और फंक्शन में पुट करने के बाद हम इसका एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। बट जो मेन फोकस है हमारा वो है इस पे और इस पे। जब हमने ये मेथड यहाँ पे पेरेंट क्लास में बनाया था तो इसमें तो पास है, खैर पास के बजाय आप कुछ भी लिख सकते हो, बट फिलहाल के लिए अगर इसमें पास है तो यानी कि इसके अंदर कुछ नहीं है। अगर हम नॉर्मली इसका यूज कर रहे होते यहाँ पे एरिया में, तब इसके अंदर कुछ नहीं है, मतलब कोई वैल्यू इसमें पुट नहीं थी। बट हमने चाइल्ड क्लास में वापस से हमने एरिया मेथड को डिफाइन किया, और इसके अंदर हमने रिटर्न में ये सर्कल का एरिया और यहाँ पे रिटर्न में रेक्टेंगल का एरिया दे दिया। तो हमने क्या किया, जो फर्स्ट मेथड था सेम मेथड वापस से यूज किया, और उसकी वैल्यूज को या फिर उसके अंदर के कोड को हमने चेंज कर दिया। दैट इज polymorphism. Whenever you are changing the code of a parent method, then you are using polymorphism.
चाइल्ड क्लास के में आप कभी भी पेरेंट क्लास के मेथड के साथ कुछ भी चेंज कर रहे हो, दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। और ये हम जनरली जब करते हैं जब हमें एक पेरेंट क्लास से हम नॉर्मली जब भी आप इसको देखने को मिलेगा, ये आपको मल्टीपल में तो बहुत कम, बट हायरार्किकल में ही ऑब्वियसली हमेशा हायरार्किकल में ही हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि एक पेरेंट क्लास के थ्रू जब हम बहुत सारी चाइल्ड क्लासेस क्रिएट कर रहे होते हैं तो कई बार हमें होता है कि ये वाली चाइल्ड क्लास में ये मेथड ऐसे यूज़ हो, ये वाली चाइल्ड क्लास। हाँ फ्रांस। सर इसमें और ओवरराइडिंग में क्या फर्क है? लुक, ओवरराइडिंग में जब हम वैल्यू चेंज कर रहे होते हैं तब लेट मी गिव दैट एग्जांपल अगेन, सेम जो हमने लिया था ओवरराइडिंग का। लुक, यहाँ पे हमारी पेरेंट क्लास थी ये, ठीक है, एक नॉर्मल हमने पेरेंट क्लास बनाई, उसके बाद हम यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहे थे, सेम फंक्शन है बट हम इसमें वैल्यू किसकी चेंज कर रहे हैं, प्रिंट की। अगर आप इसको यहाँ से एक पूरे को रन कर लेते हैं, एक मिनट। अब वन बाई वन हम एक स्टेप देखते हैं इसका। फर्स्ट पॉलीमॉर्फिज्म का, उसके बाद ओवरराइडिंग का। अगर आप ऊपर से देखने चाहेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आप वैल्यू चेंज कर रहे हो, यहाँ पे भी वैल्यू चेंज कर रहे हो, सेम फर्स्ट पेरेंट मेथड का ही हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पे वैल्यू, बट सेल्फ विदाउट विद, टू बी ऑनेस्ट अगर यहाँ पे मैं डिफाइन करने जाऊँ तो कैसे ही करूँ। सॉरी एज ऑफ नाउ मेरे पास कोई ऐसा एग्जांपल दिमाग में नहीं आ रहा जिससे मैं तुम्हें डिफरेंस क्रिएट करके बना सकूं, क्योंकि जब हम पॉलीमॉर्फिज्म में डिफरेंशिएट क्रिएट करने जाते हैं या फिर हम चाइल्ड क्लास का वैल्यू चेंज करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू, तो जनरली जब हम करेंगे तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू करते हैं। कंस्ट्रक्टर की वैल्यू जब भी आएगी, जब भी हम फॉर्मूलाज वगैरह कोई चेंज कर रहे होते हैं या फिर कोई भी फंक्शन में जब हमने लाइक कैलकुलेटर भी बनाने जा रहे हो उसकी भी अगर आप वैल्यू चेंज करोगे तो वो हम करते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के थ्रू। बट होना तो ये भी ओवरराइडिंग ही चाहिए, या फिर ऐसा बोल लो पॉलीमॉर्फिज्म स्पेसिफिक टाइप ऑफ ओवरराइडिंग, क्योंकि वैल्यू तो यहाँ भी चेंज कर रहे हैं। गुड क्वेश्चन, मैंने भी नहीं सोचा। आई विल लुक इनटू इट, अगर मुझे दिखा कोई ऐसे स्पेसिफिक एग्जांपल जहाँ पे हम डिफरेंशिएट क्रिएट कर सके ओवरराइडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म का, वरना तो पॉलीमॉर्फिज्म इज अगेन ओवरराइडिंग। आप ट्राई इट एट योर ओन। आपको क्या करना है कि हायरार्किकल के बजाय इसमें आप ओवरराइड करके देखना यहाँ पे कि एरिया सेल्फ में अगर पास के बजाय मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट नो नॉट पॉसिबल, क्योंकि फिर अगर मैं ये चेंज करने जाऊँगा तो वो तो फिर नॉर्मल एग्जांपल हो ही जाएगा ओवरराइडिंग का। मैं एक बार देखता हूँ इसमें कि अगर मुझे कुछ स्पेसिफिक यूज केस मिलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म और ओवरराइडिंग के डिफरेंस क्रिएट करने के,
तब मैं देख के बताता हूँ। एज ऑफ नाउ तो ओवरराइडिंग और पॉलीमॉर्फिज्म में हम बस चेंज ही कर रहे हैं वैल्यूज, और वो दोनों में पॉसिबल है, तो ओवरराइडिंग इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। सॉरी, इसका मैं देखता हूँ, ठीक है। ओके। आप तब तक के लिए इसमें जिसमें हम ओवरराइडिंग और दोनों ये पॉलीमॉर्फिज्म यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल लिखो, बिल्ड अ बैंकिंग सिस्टम, जिसमें आपके पास ये क्लासेस होंगी। आई एम पुटिंग इन द चैट बॉक्स। लुक, ये आप खुद से करके देखना कि आप एक बैंकिंग सिस्टम बनाएंगे जिसमें पेरेंट क्लास होगी आपकी बैंक अकाउंट, इसके एट्रीब्यूट्स होंगे बैलेंस, मेथड्स होंगे डिपॉजिट और विदड्रॉ, चाइल्ड क्लासेस होंगी सेविंग्स अकाउंट, चेकिंग अकाउंट है जो भी, जिसमें आप ओवरराइड कर रहे होगे विदड्रॉ को फॉर डिफरेंट रूल्स। तो ये तो हो गया ओवरराइडिंग का, बट आई एम नॉट श्योर कि पॉलीमॉर्फिज्म में कोई डिफरेंस होना चाहिए, बट ठीक है, देखता हूँ अगर कुछ मिला तो ये आप खुद से करके देखना, एक ये और एक और। मतलब एक जू मैनेजमेंट सिस्टम जहाँ पे आप एनिमल नाम की पेरेंट क्लास बनाओगे, ईट स्लीप और उनके बहुत सारे बिहेवियर्स के थ्रू पेरेंट क्लास होगी, उसमें चाइल्ड क्लासेस होंगी लाइन, एलिफेंट, बर्ड, सबकी अलग अलग, जिनके उनके यूनिक मेथड्स होंगे, लाइक रॉर, फ्लाई या ईट में या स्लीप में, जो भी वो आप उनके यूनिक मेथड बना लेना। तो ऐसे दो बेसिक एग्जांपल्स खुद से करके देखना। बाकी मैं ज़रा, इफ़ यू कैन डू इट राइट नाउ, ट्राई इट राइट नाउ, तब तक मैं चेक कर लेता हूँ पॉलीमॉर्फिज्म और ये ओवरराइड, वरना ये मुझे दिक्कत देता रहेगा। लोग मुझे इसके खास डिफरेंस तो दिख ही नहीं रहा है। लाइक अगर फंक्शंस में भी अगर डिफरेंशिएट करने जाओगे कि फंक्शन जब मेथड कॉल कर रहे थे तब वैल्यू हम जब यहाँ पे पुट कर रहे हैं, लाइक ये वाली जो ये बोल रहा है यहाँ पे, और ओवरराइडिंग में हम ऐसा नहीं कर सकते। बट अगेन वो है तो ठीक टाइप ओवरराइडिंग का ही है, तो यहाँ भी ओवरराइडिंग। बट एक और बता डिफरेंस यहाँ पे है कि इनहेरिटेंस में ही हम ओवरराइडिंग का यूज़ कर सकते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म का ही भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन फिलहाल स्टैक ओवरफ्लो पे तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा कि इसमें मैं कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकूं। तो मान के चलते हैं कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है दैट इज़ ए स्पेसिफिक यूज़ केस ऑफ ओवरराइडिंग, क्योंकि ओवरराइडिंग में अगर हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं पॉलीमॉर्फिज्म में भी कर रहे हैं। फंक्शंस की अगर बात करते हैं तो अगर फंक्शंस में सॉरी मेथड की भी बात करते हैं, मेथड में हम वैल्यू पुट कर पा रहे हैं यहाँ पे नहीं कर पा रहे, बट अगेन चेंज तो कर ही रहे हैं वैल्यू।
तो अगर डेफिनेशन के थ्रू जाए तो दोनों में डिफरेंस है नहीं, बस स्पेसिफिक यूज केस है कि पॉलीमॉर्फिज्म में हम जो मेथड्स हैं उनकी वैल्यूज़ के थ्रू, और मतलब चाइल्ड क्लासेस के थ्रू हम मेथड्स की वैल्यूज़ भी चेंज कर पा रहे हैं, यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं 2-4 एग्जांपल इसके ट्राई करूँगा खुद से, मिला तो ठीक, वरना तो मानना पड़ेगा। एंड अफराज, अगर आपका एक क्वेश्चन है एक बार आप भी ट्राई करिएगा, अगर आप 2 एग्जांपल्स दोनों के वैल्यूज़ कंस्ट्रक्टर के थ्रू ट्राई करिएगा कि दोनों में, एक नॉर्मल इनहेरिटेंस में और एक आप मल्टी लेवल में ट्राई करना, फिर शायद अगर कुछ डिफरेंस क्रिएट हो कि हम वैल्यू चेंज करके देख रहे हैं मेथड के थ्रू, अगर मिल जाए ठीक है, नहीं मिला तो हम ये मान लेंगे, क्योंकि ऊपर से तो मुझे देखने पे कुछ मिल नहीं रहा। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा जो ऊप्स का एक इनहेरिटेंस टॉपिक होता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बाकी आप जो भी आप देखेंगे इससे ज़्यादा तो और कुछ हम जनरली यूज़ नहीं करते इनहेरिटेंस में। लास्ट पॉलीमॉर्फिज्म ही एक होता है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, और बेसिक जो उसके टाइप होते हैं जो हमने 4 पढ़े थे वो होते हैं इनहेरिटेंस में। ठीक है, अब ऊप्स में 1-2 चीज़ें और होंगी जो हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक्स में। लेट मी पुट इट हियर। वो होता है हमारा इनकैप्सुलेशन, ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन और पॉलीमॉर्फिज्म, तो जो हमने अभी यहाँ देख ही लिया, बट पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस में है ही। अब नॉर्मली जो पॉलीमॉर्फिज्म अगर आप अलग अलग जगह भी कर रहे हो वो भी ओवरराइडिंग ही है, बट ठीक है। तो हम कल कवर हमें करना है इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन के बहुत सारे जो स्पेसिफिक यूज केस होते हैं जो हम ऊप्स में देखते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है।